حضرت شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا عبرتناک و سبق آموز واقعہ۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ یاد تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایات میں قرات سبع اشرات پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام، سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گز عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے راہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارہ پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار تب کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متع خوشم و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا، تعجب اور پریشان حال میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیروا مرشد ہیں اور علم، فضل اور زہد و عبادت میں شہرا آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا ہے، قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد
उसी गम व हसरत में उसी वक्त आलम आखिरत को सुधार गए और बाकी लोग गुड़ गड़ा कर खुदाए बेनियाज की बारगाह में दुआएं करने लगे कि मकलब अल-कुलूब, हमारे शेख को हिदायत दे और फिर अपने मर्तबे पर लुटा दे। शेख के जाने के बाद बगदाद की तमाम खानकाहें बंद हो गईं और 1 साल तक उसी गम व अफसोस में शेख के फिराक में लुटते रहे। खबर तो लें कि कहाँ हैं, किस हाल में हैं। चुनांचे हमारी एक जमात ने शेख की तरफ सफर किया और इस गांव में पहुंचकर वहां के लोगों से शेख का हाल दरियाफ्त किया तो गांव वालों ने बताया कि वो तो जंगल में सुअर चरा रहे हैं। हमने कहा खुदा की पनाह ये क्या हो गया है। गांव वालों ने बताया कि शेख ने सरदार की लड़की से मंगनी करना चाहिए तो उसके बाप ने इस शर्त पर मंजूर किया कि वो जंगल में सुअर चराया करेगा। शेख ने हाँ कर दी। चुनांचे शेख सुअर चराने की खिदमत पर मामूर है। हम ये सुनकर हक्का बका हो गए और गम से हमारे कलीजे फटने लगे। आंखों से बेसाख्ता आंसुओं का तूफान मंडने लगा। बमुश्किल हम अपने दिल थामकर इस जंगल में पहुंचे जहां शेख सुअर चरा रहे थे। हमने देखा कि शेख पर नसारी की टोपी है और कमर में जनार बांधी हुई है और इस लाठी पर टेक लगाए हुए खुनूजीरों के सामने खड़े हैं जिस लाठी से वज़वाओ खुतबा के वक्त सहारा लिया करते थे। शेख की इस हालत ने हमारे जख्मों पर नमक पाशी का काम किया। शेख ने हमें अपनी तरफ आते देखकर अपना सर झुका लिया। हमने करीब पहुंचकर अस्सलामु अलैकुम कहा। शेख ने दबी हुई आवाज में वालेकुम अस्सलाम कहा। हजरत शबली, ए शेख, इस इल्म फजल और हदीस व तफसीर के होते हुए भी आज आपका ये हाल है। शेख नदलसी, मेरे भाइयों, ये मैंने अपने इख्तियार से नहीं किया। मेरे मौला ने मुझे जैसा चाहा वैसा ही कर दिया और इस कदर मकरब बनाने के बाद जब चाहा मुझे अपने दरवाजे से दूर फेंक दिया और इसके फैसले को कौन टाल सकता है। ए मेरे अजीजों, खुदाई बेनियाज के कहर व गजब से डरो, अपने इल्म व फजल पर मगरूर न हूँ। इसके बाद शेख ने आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ए मेरे मौला, मेरा गुमान तेरे बारे में तो ऐसा ना था कि तो मुझे जलील व खवार करके अपने दरवाजे से निकाल देगा। और ये कहकर खुदा से इस्तगासा करना और रोना शुरू कर दिया। शेख ने आवाज देकर कहा कि शबली, अपने गैर को देखकर अबरत हासिल करो। हदीस में है अलसाइद मन वज़ वगैरह, यानी ने एक वक्त वो है जो दूसरों को नसीहत करे। हजरत शबली ने रोने की वजह से लहराती हुई आवाज से निहायत दर्दनाक लहजा में कहा, ए परवरिदगार, हम तुझ ही से तलब करते हैं और तुझ ही से इस्तगासा करते हैं। हर काम में हमको तुझ पर ही भरोसा है। हमसे इस मुसीबत को दूर फरमा दे। इस मुसीबत को तेरे सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। खिंजीर उनका रोना और उनकी दर्दनाक आवाज सुनते ही सब के सब वहीं जुमा हो गए और जमीन पर मुर्ग बसमिल की तरह लूटना, तरपना और चलाना शुरू हो गए। चुनांचे ये मैदान हश्र का नमूना बन गया। इधर हजरत शेख हसरत के आलम में जार वाओ क़ितार रो रहे थे। हजरत शबली ने फरमाया, शेख, आप हाफिज कुरान थे और कुरान को 7 क़ुरात से पढ़ा करते थे। अब भी इसकी कोई आयत याद है? शेख ने फरमाया, ए अजीजो, मुझे कुरान की 2 आयत के सिवा कुछ भी याद नहीं रहा। हजरत शबली ने फरमाया कि वो आयतें कौन सी हैं? शेख ने फरमाया, एक तो ये है, वमन यहिन अल्लाह फमालमन मकरम अल्लाह फिल माइशा, जिसको अल्लाह जलील करता है उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। और दूसरी आयत ये है, वमन यतबदले अलकुफर बाला ईमान फ़क़त जल सो अलस्बियल, जिसने ईमान के बदले में कफर इख्तियार किया, तहक़ीक़ वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। हजरत शबली ने फरमाया, ए शेख, आपको 30,000 हदीसें बमा असनाद के ज़बानी याद थीं, अब भी उनमें से कोई एक हदीस याद है? शेख ने फरमाया, हाँ, एक हदीस याद है और वो ये है, मन बदल देना फ़ाक़तलुआ, जो शख्स अपना दीन इस्लाम बदल डाले इसको कत्ल कर डालो। हजरत शबली फरमाते हैं कि हम शेख का ये हाल देखकर बाद हसरत व गम के शेख को वहीं छोड़कर वापस हुए और बगदाद की तरफ का कसद किया। अभी हम 3 मंजिल तय करने पाए थे कि तीसरे रोज अचानक शेख अब्बू अब्दुल्ला नदलसी को अपने आगे देखा कि नहर से गुस्ल करके निकल रहे हैं और बाआवाज बुलंद शहादती कलिमा शहादत पढ़ते जा रहे थे। उस वक्त हमारी खुशी का अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जिसको मुसीबत से पहले हमारी मुसीबत और हसरत व गम का अंदाजा हो। हजरत शबली फरमाते हैं कि शेख अब्बू अब्दुल्ला नदलसी ने करीब पहुंचकर मुझे कहा, पाक कपड़े दो, और कपड़ा लेकर सबसे पहले नमाज की नियत बांधी और हम मुंतजिर रहे कि शेख नमाज से फारिग हों तो मुफस्सल वाक़या सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद शेख नमाज से फारिग हुए
और हमारी तरफ मुतवज्जह होकर बैठ गए। हजरत शबली फरमाते हैं कि हम इस खुदाए कदीर व अलीम का 1000 बार शुक्रगुजार हैं, जिसने आपको हमसे जुदा करके फिर मिलाया और हमारी जमात की रौनक बिखर जाने के बाद फिर दुरुस्त फरमा दी। आप जरा बयान तो फरमाएं कि शदीद इनकार के बावजूद फिर आपका आना कैसा हुआ। शेख फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, जब तुम मुझे छोड़कर वापस हुए तो मैंने खुदा की बारगाह में गुड़गड़ा कर अल्लाह से दुआ की कि खुदावंदा मुझे इस मुसीबत से निजात दे, मैं तेरा खताकार बंदा हूँ। खुदा ताला ने मेरी आवाज़ सुन ली, मेरे सारे गुनाह मुआफ कर दिए गए। हजरत शबली ने फरमाया, क्या आपके इस आजमाइश का कोई सबब था? हजरत शेख ने फरमाया, हाँ, जब हम गांव में उतरे और बुत खानों और गिरजा घरों पर हमारा गुजर हुआ, आतिश परस्तों और सलीब परस्तों को गैर अल्लाह की इबादत में मशगूल देखकर मेरे दिल में तकब्बुर और बड़ाई पैदा हुई कि हम मोमिन मोहदीन और ये कमबख्त कैसे जाहिल और अहमक हैं कि वे इस वाओ बेशोर चीज़ों की परस्तिश करते हैं। मुझे उसी वक्त एक अजीबी आवाज़ आई कि ये ईमान वाओ तवहीद जो कुछ भी तुम्हारा ज़ाती कमाल नहीं, ये सब कुछ हमारी तौफीक से है। क्या तुम अपने ईमान को अपने इख्तियार में समझते हो जो उनको हकीर समझते हो? और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें अभी बतला दें। और मुझे उस वक्त ये एहसास हुआ कि गोया कि एक परिंदा मेरे कलब से निकल कर उड़ गया, जो कि दर हकीकत ईमान था। हजरत शबली ने फरमाया कि इसके बाद हमारा काफिला निहायत खुशी और कामयाबी के साथ बगदाद पहुंचा। सब मरीदियन शेख की जियारत और उनके दोबारा कबूल इस्लाम से खुशियां मीना रहे थे। खानकाहें और हुजरे खोल दिए गए। बादशाह वक्त शेख की जियारत के लिए हाजिर हुआ और कुछ हदाया पेश किए। शेख फिर अपने कदीम शुगल में मशगूल हो गए और वही हदीस वाव तफसीर व ज़वाव तज़कीर तालीम व तरबियत का दौर शुरू हो गया। खुदावंद आलम ने शेख को भलाया हुआ इल्म फिर अता फरमा दिया, बल्कि अब नस्बता पहले से हर इल्म व फन में तरक्की थी। तलामज़ा की तादाद 40,000 हो गई और उसी हालत में एक मुद्दत गुजर गई। एक रोज़ हम सुबह की नमाज पढ़कर शेख की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक किसी शख्स ने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया। मैं दरवाजे पर गया तो देखा कि एक शख्स सियाह कपड़ों में लिपटा हुआ खड़ा है। हजरत शबली ने फरमाया, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्या मकसूद है? आने वाले ने कहा, अपने शेख अब्बू अब्दुल्ला अनदलसी से कह दो कि वो लड़की जिसको आप फलां गांव में छोड़ कर आए थे आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। सच है, जब को कोई खुदा ताला का हो जाता है तो सारा जहां इसका हो जाता है, और जो अल्लाह से मुंह मोड़ लेता है तो हर चीज इससे मुंह मोड़ लेती है। हजरत शबली फरमाते हैं कि मैं शेख के पास गया, वाकया बयान किया। हजरत शेख सुनते ही जर्द हो गए और खौफ से कांपने लगे। इसके बाद इस लड़की को अंदर आने की इजाजत दी गई। लड़की शेख को देखते ही जार वाओ कतार रोने लगी। शिद्दत गम दम लेने की इजाजत नहीं देता था कि ये कुछ कलाम करे। शेख ने लड़की से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ और यहाँ तक तुम्हें किसने पहुँचाया? लड़की ने कहा, ए मेरे सरदार, जब आप हमारे गांव से रुखसत हुए और मुझे खबर मिली तो मेरी बेचैनी और बेकरारी जिस हद तक पहुंची थी, इसको मेरा दिल ही जानता है। ना भूख रही ना प्यास, नींद तो कहाँ आती। मैं रात भर उसी इस्तिराब में रहकर सुबह के करीब जरा लेट गई थी और इस वक्त मुझ पर नींद गालिब आ गई। उसी हालत में मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा जो कह रहा था कि अगर तो ममनात में दाखिल होना चाहती है तो बुतों की इबादत छोड़ दे और शेख की इत्तिबा कर और अपने दीन से तौबा करके शेख के दीन में दाखिल हो जा। लड़की कहती है कि मैंने उसी आलम ख्वाब में उस शख्स को मुखातिब होकर कहा, शेख का दीन क्या है? तो उस शख्स ने बताया कि उसका दीन इस्लाम है। मैंने कहा, इस्लाम क्या चीज है? इसने कहा कि इस बात की दिल और जबान से गवाही देना कि खुदा ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद इसके बरहक रसूल और पैगंबर हैं। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं शेख के पास किस तरह पहुंच सकती हूँ? उस शख्स ने कहा, जरा आंखें बंद कर लो और अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। लड़की ने कहा, ठीक है। ये कहा और मैं खड़ी हो गई और हाथ उस शख्स के हाथ में दे दिया। वो शख्स मेरा हाथ पकड़े हुए थोड़ी दूर चलकर बोले, बस खोल दो। चुनांचे मैंने अपनी आंखें खोले तो अपने आप को दजला, एक नहर है जो बगदाद के नीचे बहती है, के किनारे पर पाया। अब मैं परेशान हो गई और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी कि मैं चंद मिनटों में कहां से कहां पहुंच गई। उस शख्स ने हुजरे की तरफ इशारा करके कहा कि ये सामने शेख का हुजरा है, वहीं चली जाओ और शेख से कह दो कि आपका भाई हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आपको सलाम कहता है। मैं उस शख्स के इशारे के मुवाफिक
यहाँ पहुँच गई और अब आपके खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे मुसलमान कर लीजिए। शेख अब्बू अब्दुल्ला अनदलसी ने इस लड़की को मुसलमान करके अपने पड़ोस के एक हुजरे में ठहरा लिया कि यहाँ इबादत करती रहो। लड़की इबादत में मशगूल हो गई और जुहद व इबादत में अपने शरीक कसीर लोगों से सबक ले गई। दिन भर रोजा रखती और रात भर अपने मालिक व खालिक बिन याज के सामने हाथ बांधे खड़ी रहती। मेहनत से बदन ढल गया, हड्डी और चमड़े के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। आखिर उसी में मरीज हो गई और मर्ज इतना बढ़ गया कि मौत का नक्शा आंखों के सामने आने लगा और अब इसका सफर आखिरत आन पहुंचा। उसके दिल में इसके सिवा कोई हसरत बाकी नहीं रही कि एक मर्तबा शेख की जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर ली जाएं, क्योंकि जिस वक्त से इस हुजरे में मुकीम हुई थी उसी वक्त से ना शेख ने उसको देखा और ना ही शेख की जियारत हो सकी, जिससे आप चंद घड़ी के मेहमान की हसरत व गम का अंदाजा कर सकते हैं। आखिर शेख को बलवा भेजा कि मौत से पहले एक मर्तबा मेरे पास आकर शेख की जियारत हो जाए। शेख ये सुनकर फौरन तशरीफ लाए, जहां वो लड़की हसरत भरी निगाहों से शेख की जियारत के लिए तरस रही थी, मगर आंसुओं में डूबी हुई आंखें इसे एक नजर भी देखने की मोहलत नहीं देती। लेकिन इस लड़की की जबान बेजबान ये कह रही थी, दम आखिर है जालिम, देख लेने दे नजर भरकर, सदा फिर दीदा तर करते रहना अश्क फशानी। आखिर शेख साहब आए तो लड़की ने लड़खड़ाती हुई जबान और बैठी हुई आवाज से इतना लफ्ज कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकाता। शेख ने शफकत आमेज आवाज से सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, तुम घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह अनकरीब हमारी मुलाकात जन्नत में होने वाली है। लड़की शेख के नासिहाना कलमात से मुतासिर होकर खामोश हो गई और अब ये खामोशी और मेहर सुकूत सुबह क़यामत से पहले ना टूटेगी। इस खामोशी पर कुछ देर नहीं गुजरी थी कि मुसाफिर आखिरत ने इस दार फानी को खैर बात कहा। शेख इस लड़की की वफात पर गमजदा हुए, मगर शेख की हयात भी दुनिया में चंद रोज से जायद नहीं रही। हजरत शबली फरमाते हैं, चंद ही रोज के बाद शेख साहब इस आलम फानी से रुखसत हुए। कुछ दिनों के बाद मैंने शेख को ख्वाब में देखा कि जन्नत के एक पर फिजा बाग में मुकीम हैं और 70 हुरों से आपका निकाह हुआ है, जिनमें पहली वो औरत है जिसके साथ दुनिया में निकाह हुआ। वो औरत यही लड़की थी और अब वो दोनों अबदलाबाद जन्नत की बेशकीमती नेमतों में खुश वख्रम हैं। ज़ालक फजल अल्लाह युतियमन यशअल्लाह ज़ौल फजल अलसम। हासिल मालूम हुआ कि बेशक ये तकब्बुर ऐसी बुरी बला है कि शेख अलमशाख तक को भी कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ही महज अपने फजल व करम से इस मसीद से बचाए, आमीन, और इस वाक़या से अबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।